एन आपका प्रैक्टिकल्स का लगेगा। प्रैक्टिकल्स अगर ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगा तो इमीडिएटली आपको मिल भी जाएगा वहाँ। मैम यही तो आपने कहा था प्रैक्टिकल्स बेस्ट मैम 2 पीटी होंगे, उसमें से जो बड़ी ज़्यादा अच्छी मार्क्स आएंगे उसमें वो लगेगा, तो वो दूसरा कब होगा? 2 पीरियोडिक टेस्ट। व्हाट आर यू टेलिंग? मैम यू सेड देयर विल बी 2 पीरियोडिक टेस्ट, बेस्ट के लगेंगे फिर उसमें से हाँ, वो सब्जेक्ट। एनुअल एग्जाम के लिए वही होता था। मैम अब नहीं होएगा? अभी तो पीरियोडिक 1 आपका हो चुका है। ये बोला गया था दो जो आर एब्सेंट इन PT1, जिनके साथ प्रॉब्लम था वो अपलोड नहीं कर पाए, उनका PT2 का बेस्ट माना जाएगा। ठीक है। Okay, we are continuing laws of motion that I had given you a question, push or pull, which one is better? With respect to friction, we'll do it. Which one is better? Yes, tell me the answer. Pushing is better. Pull is better. Pull is better. And how you will explain it? With the help of, इसको बोलते हैं roller. If you are pulling it, suppose you are pulling it with this force. ठीक है, this is the force of pulling. It can be resolved into two components. Ma'am, your mic is not turned on. Wait. मैम Video is not switched on. Okay. Push or pull, which one is better? We have given the answer pulling. Now you see if this is the direction of the pulling. Pulling का direction ये है. So this angle is theta. Then this one is f cos theta, and this one is f sin theta. ठीक है? F cos theta and f sin theta, and this is the weight vector, and this is the, if this is the surface, this is the frictional force. Now you tell me, weight कितना हो गया? रिजल्टेंट वेट जो ऊपर जा रहा है, मतलब आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स? ये अगर काइनेटिक फ्रिक्शनल है तो फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू के टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। देन व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हियर? दिस वन इज योर एफ साइन थीटा, दिस वन इज योर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इन दिस डायरेक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ में कितना मल्टीप्लाई करूंगी? Yes, anyone? This can be equivalent to mu k remaining same. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? रिजल्टेंट फोर्स इसके लिए कितना होगा? इज इट W और W माइनस एफ साइन थीटा? W minus F sin theta. W minus f sin theta. If I am pulling it, I am getting frictional force this much amount. ठीक है? The same equation. If I am pushing it, same equation. If I am pushing it, the normal reaction force. If I am pushing it, just if I am pushing it, then this can be resolved. if pushing को आगे कर दो, this can be resolved into two components. W भी इस डायरेक्शन में, F, your F cos theta is also, if I am pushing it with an angle theta, then this one is your F cos theta, this one is your F sin theta, and frictional force is along this direction. What is the value of frictional force here? Fk is equal to mu k times normal reaction. Then what is the value of normal reaction here? W plus F sin theta. W plus F sin theta. तो फ्रिक्शनल फोर्स इफेक्टिवली कहाँ ज्यादा है? फर्स्ट केस या सेकंड केस? Second case. सेकंड केस. तो फ्रिक्शनल फोर्स इन द केस 2, फ्रिक्शनल फोर्स इफेक्ट K2 इफेक्ट K1 से बड़ा है. So for this only pushing is difficult. This one is pushing. Pushing is difficult and pulling is easier. What is the correct explanation? Correct explanation is with respect to friction. Don't explain it randomly. You have to explain with proper mathematics. So when you are, ये आपको MCQ बन जाएगा. Pushing और pulling, which one is better? तो इसमें से दिया जाएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू के टाइम्स W माइनस एफ साइन थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू के टाइम्स W प्लस एफ साइन थीटा, और दो रैंडम आंसर. तो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर. पुलिंग इज बेटर बिकॉज ऑफ दिस. फ्रिक्शनल फोर्स इज लेस. इज इट अंडरस्टूड? भव्य भारद्वाज, इज इट अंडरस्टूड? भव्य, इज इट अंडरस्टूड विथ प्रॉपर मैथमेटिक्स? MCQ विथ प्रॉपर मैथमेटिक्स इक्वेशन के साथ ही आएगा. क्यों पुलिंग बेटर है?
Bobby, tell me. Yes. Can you able to write tick mark? आपको देना पड़ेगा एक आंसर में. That answer should be with least frictional force. Okay, any doubt here? Aishwarya, are you understanding? Aishwarya Gopinath? Yes, ma'am. Okay. Arav Grewal, are you present today? क्योंकि 12th क्लास में हम 3 बच्चों को फाइंड आउट किए जो क्लास में खाली पूरे दिन सॉरी सॉरी बोल रहे हैं. अटेंडेंस में 3 टाइम्स ली. अभी प्रीवियस क्लास में तीनों बार वो नहीं मिले. अभी एक्सक्यूजेस दे रहे हैं कि हम थे. ऐसे नहीं करो. आरव ग्रेवाल, आर यू हियर? मैम पुशिंग में भी Yes, ma'am. नॉर्मल रिएक्शन Yes, ma'am. फोर्स होगी, फिर डाउनवर्ड्स होती है. क्या क्या? पुशिंग में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डाउनवर्ड्स ही होगी ना. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा अपवर्ड होता है. ये एमजीए और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स में क्या होगा, एक जगह एमजी यहाँ था एफ साइन थीटा. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस एफ साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू वेट और एमजी. तो नॉर्मल रिएक्शन था W माइनस एफ साइन थीटा. एक केस में जब हम पुल कर रहे थे, जब हम पुश कर रहे थे तब दोनों साथ साथ था. एफ साइन थीटा क्या करता, पुशिंग में इसके साथ था. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दोनों का एडिशन था. आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम. डोंट टेल नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डाउनवर्ड. रिएक्शन फोर्स हमेशा अपवर्ड होता है, मतलब अपोजिट टू वेट वेक्टर होता है. ठीक है. रिएक्शन फोर्स यहाँ से दोबारा समझ लो तुम्हारे लिए. ये टेबल है, टेबल के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है. तो वेट वेक्टर कहाँ जाएगा, टेबल के ऊपर जाएगा. और रिएक्शन फोर्स कैसे आएगा, टेबल देगा ब्लॉक को. ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को टेबल दे रहा है. रिएक्शन फोर्स ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. अंडरस्टूड? टेल मी. यस मैम. लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नेक्स्ट टॉपिक पूरा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स डिपेंडेंट है. अभी देखो ये बॉक्स है, ये इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर बॉक्स है, mg वेक्टर यहाँ है. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे होगा? एस एनीवन? ऑपोजिट टू Perpendicular to the Perpendicular to surface. the inclined plane. परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन. ये तो अगर आपको पूछा जाएगा ऑपोजिट टू, व्हाट इज आंसर? mg cos theta. mg cos. mg cos theta. ऑपोजिट टू mg cos theta. डोंट राइट MCQ में ऑपोजिट टू mg. नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट ऑपोजिट टू mg एवरी टाइम. ये डिपेंड करना पड़ेगा. बट नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर. Babbe, are you understanding? Yes ma'am. Kanak, are you understanding? Yes ma'am. Okay. Depends on this normal reaction. Next topic is circular motion of a car on a level road. रोड का नाम है लेवल रोड. लेवल रोड का मीनिंग क्या है पता? हर जगह एक ही, सपोज ये टर्न कर रहा है, ये आपका रोड में गाड़ी ऐसे टर्न करेगा, लेकिन ये हर जगह प्लेन है, ऐसे उठा हुआ नहीं है. अगर ऐसे रोड उठा हुआ होता है तो गाड़ी को टर्न करने में इजी होता है. तो मेरे पहले से गाड़ी ऐसे चलता है, लेकिन मेरे पास है कि द व्हीकल इज मूविंग लाइक दिस, लेवल रोड. ये होता है एलिवेटेड रोड. ये एलिवेटेड रोड. अभी प्रेजेंट केस में एलिवेटेड रोड नहीं है, हमारे पास लेवल रोड है, जो आपके कहीं भी ऐसे स्ट्रेट लाइन में आप देख सकते हो कि जहां भी टर्न लेना पड़ेगा तो ये लेवल रोड है. लेवल रोड में अगर एक व्हीकल शार्प टर्न लेता है तो कैसे जाएगा? विल इट बी लाइक दिस, बहुत तेज स्पीड में जाता है तो ऐसे जाएगा, और ये थोड़ा सा उठ के जाएगा. जस्ट टेल मी. फर्स्ट केस पूरे पेन यहाँ टच करके जा रहा है, सेकंड केस में पेन का इस साइड टच कर रहा है और इस साइड थोड़ा ऊपर हो रहा है. व्हिच वन इज करेक्ट, फर्स्ट वन सेकंड वन? इफ योर स्पीड इज एक्सट्रीम हाई, मैम Second one. सेकंड वन. अपने आप गाड़ी ऐसे हो जाता है अगर आप टर्न लोगे, तो उस टाइम चांसेस क्या रहता है कि आप इस टाइप को ऐसे, जैसे होता है आप देखोगे बद्रीनाथ, केदारनाथ, कोई भी हिली एरियाज के रोड में अगर गाड़ी बहुत ज्यादा शार्प टर्न ले रहा है और रोड लेवल है तो ऐसे उल्टा होके और यहाँ रिवर खाई में जाके गिर जाते हैं. देयर आर commonly available incidents, but it is a level road. First case, it is a level road, and in the level road, let the car is moving. This is the wheel of the car. कार के डिजाइन पे मत जाओ. ये क्वेश्चन जब भी आता है 3 मार्क्स में,
बच्चे क्या करते हैं, कार के डिजाइन बना देते हैं, पूरे ऑडी BMW बना देते हैं, इक्वेशन 0, तो हम उनको 0 देते हैं, ठीक है। हमें कार से शौक नहीं, हमें मैथमेटिक्स फिजिक्स से शौक है, ठीक है। तो व्हाट इज द वेट वेक्टर, लेट दिस वेट वेक्टर, इसके सेंटर से ले लो, लेट द वेट वेक्टर इज and let the reaction force दोनों में ले लो, let this one is R1, this one is R2, and frictional force कौन सी डायरेक्शन में होगा, अगर ये लेवल रोड है तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, R1 के साइड। फ्रिक्शनल फोर्स, और ये इमेजिनरी सर्कुलर पाथ है, दिस इज द इमेजिनरी सर्कुलर पाथ। एक फोर्स टुवर्ड्स इट रहेगा, एक फोर्स बाहर की तरफ जाएगा। what force provides the frictional force here? Yes, anyone who can tell me? Centripetal force। तो एक साइड में अगर फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो दूसरे साइड आप सेंट्रीफ्यूगल ले सकते हो, mv²r। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स gives you the frictional force here। तो what will be the equation? If you take frictional force आपका इस व्हील के लिए F1 है, इस व्हील के लिए F2 है, तो F1 plus F2 आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, F1 plus F2 is equivalent to F1 plus F2 is equivalent to mu times reaction force R1 plus R2। Yes or no? That is equivalent to mu mg। तो अगर ये सेफ टर्न लेना चाहता है तो mu mg should be greater than equal to mv²r, that is your frictional force। ये जो r है रेडियस इसका, mv²r, that is your centripetal force। Then what is the formula for v²? v² के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v² should be smaller than equivalent to mu mgr mu gr is a common formula, mu gr। तो v maximum should be equivalent to mu rg under root, mu gr under root। This is the formula। कितने मैक्सिमम वेलोसिटी में जाओगे आप, इस टाइप का लेबल रोड है, शार्प टर्न लेने के लिए डिपेंड्स ऑन व्हिच फैक्टर्स। कितने मैक्सिमम वेलोसिटी आपकी गाड़ी में होना चाहिए, मैक्सिमम स्पीड लिमिट लिखा जाता है। Yes, Kanak, tell me what should be the maximum velocity for a safe turn? Depends on which factor? Radius। मैक्सिमम वेलोसिटी v maximum is directly proportional to radius। अगर ये बहुत चौड़ी रोड है तो बड़ा आराम से आप जा सकते हो, अगर ये कंजेस्टेड है, नैरो है, तो आप हाई स्पीड में जाओगे तो उल्टा होने की चांसेस है। yes or no? रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द इनर सर्कल जनरली लिया जाता है। नेक्स्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम एक ही प्लेन पे हैं, इतनी ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता है, तो ये इतने फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट क्या वेरिएशन है, डिपेंड्स ऑन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। रोड कैसे होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर बहुत सारी चीज डिपेंड करता है। लेवल रोड है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ द सरफेस। टेल मी अबाउट क्रिकेट मैच, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेडियम्स। सारे स्टेडियम्स में पिच जो बनता है खेलने के लिए वो एक ही टाइप का बनता है। बैट्समैन हमेशा कंप्लेन देते हैं ये हाई स्कोरिंग पिच है, ये लो स्कोरिंग पिच है। टेल मी व्हाई इट इज टोल्ड लाइक दिस, हाई स्कोरिंग लो स्कोरिंग? यस एनीवन? कौन सा है इंडिया में हाई स्कोरिंग? यस, हाई स्कोरिंग पिच वानखेड़े और ईडन गार्डन, दोनों को कंपेयर करो। नो वन इज क्रिकेट लवर हियर। आकांक्षा शर्मा, tell me। Not audible। I don't know। आर्यन सिन्हा, मैम मेरे हिसाब से मैम ईडन गार्डन सा। ओके। हिमांशु, किसके ऊपर डिपेंड करता है? Ma'am, I also don't know। कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं है पूरे बैच में? अमन, पांडे के सब घर में बैठे। हम क्वेश्चन रिपीट करना। Which one is a high scoring pitch? वानखेड़े स्टेडियम और ईडन गार्डन? और ये हाई स्कोरिंग पिच क्यों बोला जाता है?
लो स्कोरिंग पिच क्यों बोला जाता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो तो सेम ही पर्सन और जगह बनाता है। मटेरियल कुछ कम दे देता है, लेवलिंग पे ग्रास ज्यादा होना चाहिए, मतलब फील्ड में पिच के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ग्रास फील्ड में ग्रास ज्यादा होना चाहिए। कोएफिशिएंट मैम फ्रिक्शन लेवलिंग भी होती है, ग्राउंड में लेवलिंग भी होती है तो उसकी मैम वजह से भी लैंड हायर मेनली डिपेंडेंट ऑन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मटेरियल्स बनाने वाला इक्वल नहीं होता, इक्वल क्वालिटी मटेरियल नहीं होता, तो नया जो बनता है का लेवल देखते हैं ना, क्या? मतलब पिच जितना लेवल रहेगा उतना हाई स्कोरिंग रहेगा वो। अच्छा, जितना लेवल रहेगा उतना है, तो लेवलिंग करने में गड़बड़ करते हैं। तो सारे को एक जैसे क्यों नहीं है? हर फील्ड एक जैसे क्यों नहीं है? फील्ड डिपेंडेंट होता है, उसी सेम फील्ड में क्रिकेट प्लेयर डिपेंडेंट होता है मैम, किसके? फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट होता है। फ्रिक्शन पे ही डिपेंडेंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ऐसे आपका रोड भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, रोड मेकिंग। अभी देखो बारिश होने के बाद सारे रोड में बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ऐसे कैसे हो जाता है? बारिश होने के बाद रोड बहुत अच्छा था, गड्ढे हो गए क्योंकि मटेरियल सही नहीं दिया हुआ है। मटेरियल यूज्ड पे डिपेंड करता है। मटेरियल यूज्ड दैट गिव्स यू द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट। तो आप अगर ऐसे रास्ते में जाते हो, ये बहुत चौड़े वाला टर्न आप बड़ा आराम से ले सकते हो। अगर आप ऐसे रास्ते में जाते हो तो बड़ा देख के चलाना है, स्लो चलाना है आपको गाड़ी। इज इट अंडरस्टूड? बिकॉज द फॉर्मूला इज v maximum is mu rg. Is it understood? Level road की formula we have already given. Next one is Yes, ma'am. banked road. Second one is a banked road. Banked road, banked का मीनिंग है elevated, एक साइड उठा हुआ है, banked और elevated road. This is your banked और elevated road में क्या होता है कि रोड पे ही ऐसे होता है, रोड पे पहले से ऐसे बना हुआ है, इस साइड इतना हाइट है, एक साइड इतना हाइट है और एक साइड इतना है। Have you seen this type of road? एक स्टेट में सारे रोड ऐसे हैं, एक स्टेट है इंडिया का जिसमें सारे रोड ऐसे एलिवेटेड है, कभी आपको स्ट्रेट नहीं मिलेगा। Anyone who can name it? बैंगलोर बैंगलोर में नहीं है, बैंगलोर का मेन जो सिटी है उसमें है, जो ओल्ड सिटी, लेकिन बैंगलोर में तो रोड बहुत अच्छा है। Yes, anyone? Any guess? किस रीजन में होगा बता दो। नो, कहीं घूमने नहीं गए हो क्या? पेंडेमिक के इसीलिए हिल स्टेशंस की वो होती है जी, हिल स्टेशंस के में ही होता है मोनली, नहीं तो नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कभी गए हो? एनी स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न? एनीवन हु हैज गॉन एनी स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न? आई हैव सीन इट इन मिजोरम। सारे रोड ऐसे ही होते हैं, आप चलोगे भी तो आप टेढ़ा हो जाएंगे, आपका एमजी वेक्टर एक कॉर्नर में आ जाएगा। मामी कैसे एलिवेटेड है? मतलब राइट साइड पे ज्यादा हाइट है, लेफ्ट साइड पे कम है, ऐसे? हाँ, क्योंकि टर्न ऐसे है, उल्टा टर्न होगा, उल्टा टर्न होगा तो जस्ट उल्टा बना जाएगा। ठीक है, ये टर्निंग आपका इस साइड को है, टर्निंग और उस साइड का होता तो ये साइड एलिवेटेड होता। कभी देखे हो इस टाइप का रोड? पूरे रोड ऐसे है, पूरी सिटी मिजोरम आप जाओगे तो आप यहाँ खड़े होके जाना ही मुश्किल होता है, तो इसलिए सारे लोग प्रीफर करते हैं कि इस कॉर्नर में चले, अगर फ्री रोड है तो इस कॉर्नर में चले, लेकिन इस कॉर्नर में सारे गाड़ी एक्सट्रीम हाई स्पीड में टर्न करता है, बड़ा डिफिकल्ट होता है रोड वॉकिंग ना। इसी व्हाट इज द लॉजिक हियर? ये आपका टर्न है, इसमें से आपको कितने चीज दिया हुआ है सब नोट डाउन करो। ये आपका थीटा है, इसके ऊपर गाड़ी जा रही है, तो कार हमेशा आपका ऐसे टेढ़ा होके जाएगा। ये आपका सपोज ये कार्स है, डोंट गो फॉर द डिजाइंस हियर, you should understand the mathematics here. Let this is the car. इसके mg वेक्टर ऐसे गया, लेकिन इसके रिएक्शन वेक्टर कैसे जाएगा? रिएक्शन वेक्टर इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर जो है वो ये है, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। कनेक्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर, दिस इज द रिएक्शन फोर्स। इज इट अंडरस्टूड? रिएक्शन फोर्स mg वेक्टर के साथ यही सेम थीटा एंगल ज्योमेट्रिकली यहाँ हो जाएगा, दिस एंगल इज थीटा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? किसका डाउट है पूछो, यहाँ तक किसका डाउट है पूछो जल्दी। नो, रिएक्शन फोर्स इज अलोंग दिस डायरेक्शन, इट इज
रिएक्शन फोर्स का ये कंपोनेंट है, रिएक्शन फोर्स का दो कंपोनेंट ले लो, दिस वन इज आर cos थीटा कंपोनेंट और रिएक्शन फोर्स का आर sin थीटा कंपोनेंट ये है, दिस वन इज आर sin थीटा कंपोनेंट। ये रिएक्शन फोर्स का sin थीटा कंपोनेंट है, रिएक्शन फोर्स का cos थीटा कंपोनेंट है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ आएगा? फ्रिक्शन फोर्स ये सरफेस के अलोंग आ रहा है, दिस इज योर फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं दो कंपोनेंट में डिवाइड की तो इसका एक कंपोनेंट इसमें जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स को अगर मैं दो में डिवाइड की तो यहाँ मेरा कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos थीटा और sin थीटा। टेल मी इफ द cos थीटा, दिस इज f cos थीटा कंपोनेंट एंड दिस वन इज f sin थीटा कंपोनेंट। आगे समझ में अभी कितने रिजोल्यूशन है? रिएक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है, फ्रिक्शन फोर्स को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसके ऑपोजिट में हमारे पास क्या है? फ्रिक्शन फोर्स के ऑपोजिट में हमारे पास है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²r, जो ऑपोजिट टू सेंट्रीफ्यूगल और ऑपोजिट टू सेंट्रीपिटल दैट इज योर सेंट्रीफ्यूगल। नाउ यू टेल मी द फोर्स उस तरफ क्यों है? क्या क्या रिएक्शन फोर्स वहाँ क्यों है? अभी तो तुम्हें समझाए थे, अगर सरफेस ऐसे है तो रिएक्शन फोर्स सीधा जाएगा, सरफेस ऐसे है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर जाएगा। रिएक्शन फोर्स इज परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस, ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर 90 डिग्री बनाएगा। इसीलिए तो मैं पहले रिएक्शन फोर्स क्लियर की थी कि रिएक्शन फोर्स 90 डिग्री बना रहा है ये सरफेस को। ओके हमेशा ये याद रखो, रिएक्शन फोर्स गड़बड़ मीन्स आगे सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? और उमिता आर यू अंडरस्टैंडिंग? बहुत सारे बच्चों को और इंडिविजुअली पूछने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है एक्चुअली, क्योंकि पूछने से भी कुछ फायदा ही नहीं है। जिनको नहीं आ रहा है वो दे शुड टेल। नाउ यू टेल मी व्हाट आर द इक्वेशंस हियर। आप इक्वेशंस करो। mv²r को mv²r जो है उसको मैं किसके साथ इक्वेट करूंगी? दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। मैम r sin theta and f cos theta. म्यू के एन। Okay, write down it. mv²r is equal to r sin theta plus f cos theta. r sin theta plus f cos theta. तो mv²r इसका एक्चुअली फ्रिक्शन फोर्स का अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, mv²r is equivalent to, I am having the equation r sin theta plus f cos theta. This is one equation. Second equation mg plus f sin theta is equivalent to mg plus f sin theta is equivalent to r cos theta. These are the two equations. ये दोनों equations का solutions दिया हुआ है। ठीक है? ये दोनों equations का solutions जो अभी आपको पूछा नहीं जा रहा है क्योंकि derivations था ये commonly। दोनों equations के solutions में what you are getting the value of v square की वैल्यू आ रहे हैं rg इंटू म्यू प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। ये दोनों इक्वेशंस के सॉल्यूशंस। और उसमें म्यू इज इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शनल फोर्स जो है F/R डाला हुआ है। ये पहले 3 मार्क्स से क्वेश्चन था, डेरिवेशन हम करके दिखाते थे। म्यू इज इक्वल टू F/R। ये दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो आप आपस में, r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्विवेलेंट टू v²/rg। आई एम गिविंग द हिंट्स हियर कैसे इस इक्वेशंस को सॉल्यूशंस किया हुआ था। आपके पास इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशंस देखो, दोनों इक्वेशन से मैं ये लिख सकती हूँ r sin थीटा प्लस f cos थीटा कितना हो गया इज इक्विवेलेंट टू mv²/r। एक इक्वेशन mv²/r। सेकंड इक्वेशन इसमें जो डिवाइड हुआ है दैट इज योर r cos थीटा, उस साइड में ले लो f sin थीटा। दिस इज इक्विवेलेंट टू mg। तो ये दोनों को डिवाइड करने में आपको v²/rg फॉर्मूला आ रहा है। यहाँ देख रहे हो राइट साइड को डिवाइड करने में, लेफ्ट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में जो डिवाइड है उसमें से फिर cos थीटा डिवाइड करो, r sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा कितना हो जाएगा r tan थीटा। ये सुनो, आ रहे समझ में?
ये इक्वेशंस के डेरिवेशंस। कनक, आर यू अंडरस्टैंडिंग? कनक एक मिनट बताओ। आ रहा है मैम। इस इक्वेशंस के डेरिवेशंस कैसे होता है मैं यहाँ साइड में दिखा रहा हूँ। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। इस साइड में मैंने क्या किया, आर साइन थीटा को डिवाइड किया आर कॉस थीटा में, और यहाँ प्लस एफ कॉस थीटा को भी आर कॉस थीटा में डिवाइड किया। पूरा इक्वेशंस को मैंने आर कॉस थीटा में डिवाइड कर रहा हूँ। आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, फिर माइनस एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा। तो मेरे पास क्या आ रहा है, राइट साइड में बी स्क्वायर बाई आर जी है, लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, आर आर कट गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या है, टैन थीटा, टैन थीटा, और प्लस प्लस क्या आ रहा है, टैन थीटा प्लस एफ बाई आर। बताओ यहाँ थोड़ा सा, टैन थीटा प्लस एफ बाई आर, अंडरस्टूड, डिवाइडेड बाय आर कॉस थीटा 1 हो गया, माइनस एफ बाई आर, नहीं एफ बाई आर टैन थीटा। इज इट कमिंग लाइक दिस? यस मैम। Yes, तो ma'am. एफ बाई आर को म्यू लिख दो, एफ बाई आर जहां जहां लिखा है उसको म्यू लिख दो, एफ बाई आर इज इक्विवेलेंट टू म्यू। तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट राइटिंग, tan theta plus f by mu, नहीं tan theta plus mu प्लस म्यू डायरेक्टली upon डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टैन थीटा इज इक्विवेलेंट टू v स्क्वायर बाय rg। तो फॉर्मूला आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू rg इनटू इतना। इज इट अंडरस्टूड? v स्क्वायर इज Yes, इक्वल। ma'am. नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज 0, अगर ये पूरे क्वेश्चन में नो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज 0 अगर मैं पुट कर दूं तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, टेल मी, tan theta upon 1 minus tan theta, or I can get the equation tan theta is इधर equal tan theta हो जाएगा। tan theta is equal to v square by rg. This is the common equation. तो v square is equal to rg tan theta. v square is equivalent to rg tan theta और theta is equivalent to tan inverse कितने एंगल होना चाहिए, कितने एंगल होना चाहिए, कॉमन आंसर होता है tan inverse v square by rg फॉर लेवल रोड, नहीं फॉर बैंक रोड। नाउ यू टेल मी, ये बैंक रोड में थीटा एंगल मुझे कांस्टेंट दिया हुआ है, मेरे को मैक्सिमम स्पीड लेने के लिए, नहीं थीटा एंगल किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, मैक्सिमम स्पीड इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्पीड लिमिट, डिपेंड्स ऑन रेडियस। पहले आप देखोगे नैरो है और वाइडर है, सेकंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो नियरली इंडिपेंडेंट होता है, और tan थीटा मेन होता है इसका tan थीटा मींस ये p बाई b, अगर बेस आपका छोटा है तो tan थीटा आपका ज्यादा है, ये सब नो। आप कितने हाई स्पीड लोगे, जो आप गए हो, एनीवन हु वाज मूव टू शिवकोड़ी फ्रॉम वैष्णो देवी के आगे शिवकोड़ी, कितने लोग गए हैं, बहुत ही नैरो और एलिवेटेड रोड है, लेकिन बहुत हाई स्पीड में वो छोटे छोटे गाड़ी जो क्रॉस करता है। हैव यू एवर बीन टू शिवकोड़ी, एनीवन आउट ऑफ 33 स्टूडेंट्स? नहीं गए हो, किसी का आंसर नहीं आ रहा है। ओके, मसूरी कितने लोग गए हैं? मसूरी की रोड भी बहुत ही ऐसे होता है, मतलब पूरे टर्न शार्प टर्न होते हैं मसूरी में। और मैम वो तो प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती फिर। मसूरी में प्रॉब्लम नहीं होता स्पीड लेने की, लेकिन शिवकोड़ी के रास्ते में तो बहुत प्रॉब्लम होता है। बद्रीनाथ, एनीवन? बद्रीनाथ के बहुत हाई एंड कॉट्स होते हैं। और कौन से रोड बताओ? नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स में तो सारे रोड्स 100% रोड्स, लेकिन वहाँ के जो बॉयज होते हैं ना, सबको शायद गवर्नमेंट ने फ्री गाड़ी दे रखा है, इतने हाई स्पीड में चलाते हैं, डर लगेगा रोड क्रॉस करने में। एनी अदर रोड यू हैव सीन जहाँ बहुत हाई एंड कट होते हैं? दिल्ली में तो नहीं है एक भी, होता है इससे शार्प टर्न दिल्ली में? नहीं ना? यस एनीवन? अच्छा, यू आर नॉट ड्राइवर्स नाउअडेज। मैम मनाली का भी शायद शार्प टर्न होता है काफी। मनाली में होता है, लेकिन मनाली आजकल सारे बाईपास रोड बन गया ना, हम तो बड़े बड़े बस में गए हैं। मनाली में होता है,
एक दो जगह है मनाली में। आजकल सबसे शार्प टर्न है जो ड्राइविंग लाइसेंस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड फॉर ड्राइविंग लाइसेंस न्यू? नए वाला बहुत शार्प टर्न होते हैं, नॉट इजी। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करो लर्नर्स, यू कैन ट्राई योर हैंड देयर। क्या मैम जरूरत नहीं अभी अप्लाई करने की। सारे लोग तो लॉकडाउन में ही वही किए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ट्राई किए वो टर्न में, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्न्स है। ओके वी हैव डन। घाटी कभी गए हो? जयपुर घाटी, बड़े बड़े घाटी होते हैं एमपी में, मध्य प्रदेश में, बिहार में बड़े बड़े घाटी होते हैं। इतना डेंजरस टर्न होता है, गाड़ी से इंक्लाइन प्लेन में मैक्सिमम टाइम तक जाम में रहते हैं, ऐसे इंक्लाइन प्लेन है। इस इंक्लाइन प्लेन में एक बस इधर एक बस इधर ऐसे, और कितने टाइम तक वो ब्रेक को दबा के रखते हैं। देख लो कितना mg sin थीटा वेक्टर उनको खींच रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन बहुत अच्छा होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कभी गए हो ऐसे? बहुत टाइम तक बोलते हैं, कभी कभी 3-3 घंटे ऐसे जाम में फंस जाते हैं। एनीवन हैविंग द एक्सपीरियंस? कोई ऐसे खास एक्सपीरियंस नहीं है? नहीं, सब घर में काफी के बैठे हो। वेरी गुड। गए नहीं गए? कनक एनी adventurous journey? No. बब्बे मिश्रा, बब्बे भरद्वाज, any adventurous journey? कभी नहीं? मैम 11th में घूमना था, 11th में तो घर पे बनता है। 11th में घूमना था? Who told you? 10th तक घूमना था। मैम 10th में भी घर में ही बनते हैं। 10th में कहाँ घर में बनते हैं? सबसे तो हमारा पिछला पूरा सेशन ऑनलाइन था मैम। 10th में? यस मैम। यस Yes, ma'am. ओके, तो 9th तक घूमना था। 10th तो बोर्ड एग्जाम ईयर होते हैं। 1 to 9, हमें क्या पता। 1 to 9 वर्ल्ड घूमने वाला टाइम होता है। यू हैव मिस्ड इट। ओके, द लास्ट वन इज बेंडिंग साइक्लिस्ट। ये तो सबके साथ होना चाहिए, नहीं है तो ट्राई करो। बेंडिंग साइक्लिस्ट। बेंडिंग साइक्लिस्ट क्या होता है? सपोज आप छोटे छोटे गलियों में, मैं देखी हूँ एर्लियर आई वाज इन स्कूल इन नजफगढ़, इसमें बहुत ही ऐसे गली होते हैं। इस गली में क्या होते हैं, बच्चे जो हमारे आते हैं बहुत तेज साइकिल चलाते हैं, इतनी तेज साइकिल चलाते हैं, और यहाँ साइड में ड्रेन होता है। मैक्सिमम बच्चे आज स्कूल क्यों नहीं आए? बच्चे ड्रेन में गिर गया, स्कूल यूनिफॉर्म गंदा हो गया, इसीलिए नहीं आ पाया। वी हैव अ कॉमन कंप्लेंट दैट टाइम। तो ये टर्न कैसे होता है? बेंडिंग साइक्लिस्ट, यू मस्ट हैव सीन द साइक्लिंग रेस, ऐसा नो? Yes, साइक्लिंग रेस दो टाइप का होता है, एक में हाई एक्सीलरेशन चाहिए, एक में बहुत ही स्लो होता है। यस एनीवन? एक पूछा गया था एक बार इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स एग्जाम, आईएएस एग्जाम में एक बार क्वेश्चन था, नेम द इवेंट वेयर द लास्ट वन इज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट वन, where the last participant is declared as the first participant. मैम आई हैव ओनली सीन दैट वन जिसमें सर्कुलर में करना होता है, उसमें हाईएस्ट एक्सेलरेशन चाहिए होती है। कैन यू नेम एन इवेंट जहां लास्ट में आने वाले पार्टिसिपेंट्स को विनर बोला जाता है? नो, बहुत सारे इवेंट है, लास्ट में आने वाला को विनर डिक्लेयर किया जाता है। यस एनीवन? गेम भी नहीं खेले हो कोई? इतने पारा ओलंपिक्स हो रहे हैं, ओलंपिक्स हो रहा है, कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, कुछ भी नहीं देखे हो? यस एनीवन? खाली सो के मूवी देखे हो क्या? ऐश्वर्या टेल मी a game where the person who comes at the end is declared as the winner. hide and seek. हाइड एंड सीक है, वेरी गुड। ये पूरा ओलंपिक लेवल इवेंट है, नहीं? हाइड एंड सीक, गुड आंसर। यस, नेक्स्ट साहिल शर्मा, यू आर ए न्यू स्टूडेंट, एनी आइडिया? साहिल? No, ma'am. No. मैम स्लो वॉकिंग। स्लो वॉकिंग, स्लो साइकिलिंग। मैं साइकिलिंग का बोलूं, स्लो साइकिल रेस कभी किया? स्लो वॉकिंग कोई होती नहीं, इवेंट स्लो रेस वॉकिंग वॉकिंग कोई होती नहीं है। होता है, बट स्लो साइकिलिंग रेस होता है। स्लो साइकिलिंग रेस में जो लास्ट में आता है विदाउट फॉलिंग डाउन इज डिक्लेयर्ड एज द विनर। और लोकल इवेंट बोलोगे
तो सही बोला, हाइड एंड सीक, म्यूजिकल चेयर्स, जो लास्ट में रह जाते हैं वही विनर होते हैं। ठीक है, ओके। साइक्लिस्ट क्या करता है, ये कॉर्नर है, कॉर्नर में साइक्लिस्ट, ये साइकिल का व्हील है, ये साइकिल का व्हील है और इसके ऊपर ये हैंडल है। डायग्राम देखो, ये साइकिल का व्हील है और ये हैंडल है। थोड़ा थोड़ा तो समझ में आता होगा डायग्राम, अंडरस्टूड। तो इसमें क्या होता है कि इट एनकाउंटर्स विद दिस एंगल, ये इसको एक करके एंगल थीटा इज हियर, साइक्लिंग इस एंगल के साथ बेंड होता है। तो ये जो इसका एक्शन फोर्स, यहां से देखो एक्शन फोर्स कैसे है, ऐसे जाता है, तो रिएक्शन फोर्स कैसे आएगा, रिएक्शन फोर्स इज लाइक दिस, एक्शन के अपोजिट में कनेक्ट, रिएक्शन फोर्स इज हियर। रिएक्शन फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन थीटा और कॉस थीटा? इज एनीवन? दिस कंपोनेंट शुड बी r sin theta or cos theta if theta is here, r sin theta. This one is r sin theta. Then what is your r cos theta? R cos theta is here, r cos theta component is here and mg vector is here. Then tell me the equation. r sin theta component किसके साथ इक्विवेलेंट है, ये जो सर्कुलर टर्न ले रहे हैं, mv square by r centripetal force. Then what is the equation? r sin theta is equivalent to mv square by r. Is it visible? r sin theta is equivalent to mv square by r and r cos theta is, anyone who can tell me what is r cos theta? I'm not visible. Okay. mg. r cos theta is equivalent to mg. Then what is tan theta? r cos theta is equivalent to mg. r sin theta is equivalent to mv square by r. What is tan theta? दोनों को डिवाइड करके बताओ। tan theta is equivalent to same equation you are getting, V square upon RG. v square by rg. तो थीटा कितना होगा, what should be your angle? tan inverse v square divided by rg. तो आप जो यहाँ थीटा एंगल लोगे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, योर स्पीड। अगर आप ज्यादा एंगल टर्न करके जा रहे हो तो ये वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, वेलोसिटी कम है, एंगल ज्यादा करो तो आप यहाँ गिर जाओगे। रेडियस ज्यादा होगा तो थीटा एंगल कम है, लेकिन रेडियस उस गली में ज्यादा नहीं था, तो इसीलिए अगर रेडियस ज्यादा है यू कैन टेक थीटा एंगल लेस, रेडियस इज लेस you should take theta angle more with higher velocity. Is the trick understood? Anyone was faced? बड़ा तेज साइकिलिंग करते हो अपने अपने गली में। चलो पहले तो हम लेवल रोड, बैंक रोड पढ़ा रहे थे, अभी आगे साइकिलिंग पे आ गए। सबको साइकिलिंग तो आता है एटलीस्ट, मैम। स्टाइलिश साइकिलिंग देख रहे हो? Yes, ma'am. बहुत तेज भैया ने बचपन में देखे होगे, बहुत तेज भैया ने साइकिलिंग करके आ रहा था, कॉर्नर में उल्टा होके गिरी है, इंजर्ड। हैव यू एवर सीन इट? यस मैम। मेनी टाइम्स, यस और नो? और ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कब होता है पता है? 7th 8th में। 7th 8th के बच्चे इतने हाई स्पीड में साइकिलिंग करते हैं और सारे इसी कॉर्नर के साथ एनकाउंटर में गिरते हैं। व्हाई दे फॉल? हम बहुत ज्यादा टर्न, मतलब बहुत ज्यादा साइकिल को लिटा देते हैं वो टर्न के चक्कर में। तो मतलब एंगल थीटा ज्यादा ले लेते हैं, वेलोसिटी को नहीं Velocity बढ़ाते। कम होती है। Yes. तो आप ये तो देखे होगे जो साइकिल रेस होता है ओलंपिक्स में, वीडियो तो देखे होगे, Yes, ma'am. कितने बैंड हो जाते हैं। इवन मोटरसाइकिल रेस, बहुत ज्यादा एंगल होता है, मोटरसाइकिल रेस, ग्राउंड के साथ, और स्पीड बहुत होती है। मोटरसाइकिल रेस में भी देखे होंगे, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन उसके रिलेटेड है। जो मोटरसाइकिलिंग करते हैं ना, बहुत हाई स्पीड में ये बुलेट को घुमाते हैं ऐसे, उसमें से एक जगह क्या होता है, उनका जो नी होता है ना, नी के ऊपर बहुत ही थिक दिया जाता है, इतने बड़ा सा एक कोटिंग होता है, एक रबर पहनाया जाता है। व्हाई इट इज सो? मैम नी गियर पहनते हैं क्योंकि मैम जब वो थीटा काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं तो उनका मतलब नी रोड पे टच हो रहा होता है, तो फिर इसकी वजह से कि ताकि मतलब नी इंजर्ड नहीं होगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ ए कॉमन पीपल? नी गियर क्यों पहनते हैं? सेफ्टी के लिए। सेम वन, सेफ्टी बोलेगा, नहीं तो आगे भी खींच लेगा, नहीं तो उसको इंजर्ड हो जाएगा, खून निकलेगा, हॉस्पिटल जाएगा, इंजेक्शन लगेगा, आगे पूरी स्टोरी है, लेकिन इसमें फिजिक्स गायब है। यस एनीवन? वी कैन गिव इन द करेक्ट आंसर।
मैम सपोर्ट के लिए, क्या? सपोर्ट के लिए मैम, क्योंकि जब वो थीटा काफी ज्यादा बढ़ा देगा आंसर आ तो गया, और देहाती आंसर आ गया। सपोर्ट। गिव मी फिजिक्स। मैम एंगल कम होता है तो वेलोसिटी बहुत हाई होनी पड़ती है उन्हें मूव करने के लिए, और बॉडी बेंड हो जाती है तो डैमेज ना हो इसलिए। देखो फाइनली आप भी आंसर डैमेज दे रहे हो। यस मैम पर एनीवन? नी है तो इसीलिए पहनते हैं ताकि छिल ना फ्रिक्शन की जाए। वजह से, क्या क्या? मैम फ्रिक्शन के वजह से टीयर ना हो जाए, मतलब नी में इंजरी ना हो जाए। तो ये आंसर बड़ा स्टाइलिश था बट नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स। यस एनीवन? मैम ताकि मैम मतलब कि जब वो थीटा बढ़ा रहा है तो मैम फिर वो नी टच कर लेता है ग्राउंड पे ताकि और ना बढ़े और फिर स्किड ना हो। वो तो सारे हो गया, स्किडिंग, उसका वेलोसिटी और ये सब, ये तो ऑलरेडी गिरा हुआ है, मतलब नी टच ही हो रहे हैं, लेकिन नी गियर में क्या होगा? मैम वो तो Anyone else? I don't get correct physics related answer here. Yes, anyone? Any guess? उसके अंदर चोट क्यों नहीं पहुंच रहा है? क्वेश्चन ये है। Someone is telling. मैम क्योंकि मैम जब लेते समय मैम टर्न लेते हैं मैम, तो वो थोड़ा सा मैम गियर चेंज करके मैम स्पीड डिक्रीज कर लेते हैं मैम। अरे स्पीड डिक्रीज कर लेते हैं, चोट आता है, हॉस्पिटल जाते हैं, वो नहीं है क्वेश्चन। है नी गियर का काम क्या है यहाँ? डेफिनेटली प्रोटेक्ट द बोन। मैम हाई स्पीड में एंगल कम होता है तो फ्रिक्शन बहुत हाई होता है तो बॉडी उससे इंजर ना हो इसलिए वो लगा लेते हैं। ये सारी थ्योरी हमें समझ में आ गया। फ्रिक्शन से बॉडी के पास, मेरे क्वेश्चन है बॉडी के पास इंजरी क्यों नहीं जाता? टाइम Yes, कुछ होता है ना। who is telling time? Tell me your name. रोहन। रोहन। टाइम ज्यादा लग जाता है। चेंज इन मोमेंटम रिमेनिंग कांस्टेंट, इम्पल्सिव फोर्स कम होता है। Impulsive force is inversely proportional to the time. Cricket player lawyer's hand. हर जगह समझा है, अभी आंसर के टाइम नहीं आ रहा है। सारे आंसर आप दे दिए रिलेटेड टू फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन हो जाता है, घिस जाता है, लेकिन नी गियर क्यों है? नी गियर है नी को बचाने के लिए, और नी को बचाता कैसे, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। ये है आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू बढ़ा देता है क्या? जो मैम टाइम इंक्रीज कर देता है मैम, जिसके वजह से जो उनकी नी पर जो फोर्स लगती है मैम वो घट जाती है। यही आंसर देना था। अब क्या आंसर दे रहे थे? जिसका वजह से उन्हें नी चोट नहीं लगती। नी चोट नहीं लगती, इसीलिए हम लोग टेल मी। मैम एक बार रिपीट कर दो मैम, क्या रीजन दिया था आपने? ये सेम रीजन है, जैसे आप यहाँ स्कूल में आपको 6 आवर्स एक वुडन डेस्क में बैठने के लिए बोला गया और एक सोफा में बैठने के लिए दिया गया, लेकिन आप उठने के बाद सोफा के शेप ऐसे हो गया, वुडन डेस्क ऐसे ही रहा, क्योंकि आपका जो रिएक्शन फोर्स आपको मिला वो टाइम लगा। यहाँ इमीडिएटली आपका बॉडी रेस्ट में आ गया, लेकिन इस जगह में बॉडी रेस्ट में थोड़ा टाइम लेके आया। ये जो डेल्टा टी आपके पास एक्सप्लेनेशन वही है कि चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा पी यहाँ कांस्टेंट है, डेल्टा पी रिमेनिंग कांस्टेंट, इंपल्सिव फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी ज्यादा मीन्स आपके ऊपर चोट कम लगा। क्वेश्चन था चोट क्यों कम लगा विथ नी गियर, क्योंकि नी गियर प्रोटेक्ट्स, नी गियर इंक्रीजेस द रिएक्शन टाइम। नी गियर में बॉडी का रिएक्शन जो मिलना है वो टाइम लेके मिला, तो इंपल्सिव फोर्स इज लेस। और सर एग्जांपल आपका सही था क्या? ठीक है, हाई स्पीड में जाएगा तो नी टच करेगा बिकॉज द एंगल विल बी मोर, शेप टर्न हो जाएगा, लेकिन नी जो रोड के साथ घिस के जाएगा बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, नो डाउट। फ्रिक्शन में उस एरिया में हीट भी होके जल सकता है, लेकिन नी के हड्डी तक चोट क्यों नहीं पहुंचा? इम्पल्स। ये होता है इंटरलिंकिंग। आप जो फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, ये नहीं कि आज के पढ़ाई आज खत्म हो गए, आप सबको लिंक करोगे। चैप्टर 1 को लेके चैप्टर 12th क्लास का एंड तक लिंक करोगे। जब 12th क्लास का पढ़ के खत्म करोगे, आप देखो कितना लिंक आ जाएगा। एक क्वेश्चन अभी बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था
कि मेरे पास दो बॉल है, एक है मेटल बॉल, एक है ग्लास बॉल। लेट दिस वन, एक मेटालिक बॉल है, ये मेटालिक बॉल है, ये ग्लास बॉल है। मैंने दोनों को सेम स्पीड में ऊपर फेंका, नीचे कौन सा जल्दी आएगा ये पूछा हुआ था। सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही लिख दिए, व्हिच वन विल कम बैक टू माय हैंड फास्टर। उसमें मेंशन नहीं हुआ था विथ रिस्पेक्ट टू मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, मैग्नेटिज्म, कैसे मुझे एक्सप्लेन करना है, कुछ नहीं मेंशन था। व्हाट इज द कॉमन आंसर? मेटल, मेटल क्यों आएगा? मैम क्योंकि उसका मैम वेट बहुत ज्यादा होता है मैम, इसलिए। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ फॉलिंग सुने होंगे। न्यूटन ने क्या किए थे, लीनिंग टावर ऑफ पीसा के ऊपर से एक 1 kg का पत्थर और एक पत्ता दोनों गिराए थे वैक्यूम में, दोनों ये बोला जाता है फिजिक्स में कि आप एवरेस्ट के ऊपर से नीचे गिरा रहे हो। यू थ्रो एन एलिफेंट, यू फ्री फॉल करो एक एलिफेंट का और इसका लास्ट का 3 डिजिट का, 3 लेटर का, दोनों सेम टाइम में नीचे आएंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये न्यूटन ये इसी को समझाने के लिए तो गैलीलियो, इतने साइंटिस्ट को सुसाइड करना पड़ा। गैलीलियो ही जीते थे लीनिंग टावर ऑफ पीसा से करके वैक्यूम में। एयर रेजिस्टेंस के चलते पत्ता ऐसे डांस करके करके गिरता है, पत्थर डायरेक्ट गिर जाता है, जल्दी आता है। इफ इट इज ए कॉमन क्वेश्चन, व्हिच वन विल कम बैक टू माय हैंड, व्हाट विल बी योर आंसर? ग्लास बॉल, मेटल बॉल? both at the same time. Both at the same time. It is based on gravitation. Gravitational force is independent of the mass. लेकिन क्वेश्चन 12th क्लास का है। एक बच्चे ने लिखा ये मेटल वाला जल्दी आएगा, ठीक है। मेटल वाला जल्दी क्यों आएगा? क्योंकि वो एयर रेजिस्टेंस के साथ उसमें करंट आएगा, कुछ करंट के अकॉर्डिंग। एक बच्चा लिखा ग्लास बॉल जल्दी आएगा, क्योंकि मेटल वाला में क्या होगा कि ये बहुत हाई स्पीड में मूवमेंट कर रहा है, इसमें जो करंट होगा अर्थ के सरफेस मैग्नेटिक फील्ड में जो करंट होगा वो उसको अपोज करेगा। और ये ग्लास में नहीं आएगा। जस्ट आई एम गिविंग यू अनदर सिंपल एग्जांपल। आपके पास 2 पाइप है, इसमें आप देख सकते हो। घर में प्लम्बर आ रहा होगा, एक पाइप मेटल वाला पाइप ले लो, एक पीवीसी वाला जो ग्रीन पाइप आजकल मिल रहा है, पीवीसी पाइप ले लो, एक मेटल पाइप ले लो। इसके अंदर मैग्नेट, एक छोटा सा मैग्नेट ले आओ, नॉर्थ पोल साउथ पोल गिराओ, और यहाँ टाइम नोट करो, व्हिच वन विल फॉल फर्स्ट? जल्दी कौन से गिर जाएगा? पीवीसी में जल्दी गिर जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये मैग्नेट है, ये मेटल है, ये इसको अपोज करेगा। ये नॉर्थ पोल प्रोड्यूस करेगा, रिपेल होगा, फिर इसमें बहुत झमेला है, ये जल्दी गिर जाएगा। तो इसका अकॉर्डिंग आंसर था ग्लास बॉल। आंसर आपका 3 था। एक क्वेश्चन के आंसर ग्रेविटेशन फील्ड ओनली, बोथ, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मेटल, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ग्लास। बच्चे कंफ्यूज रहे। 12th क्लास के 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। लेकिन जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन सेट किया था ना, उसने बोला कि मैंने तो मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सेट किया था। अरे कहीं तो नहीं लिखा हुआ था। बहुत ही प्रोटेस्ट किए सीबीएसई एग्जाम में, बहुत प्रोटेस्ट किया हम टीचर्स। मेरे पास एक कॉपी था, मैं चेकिंग कर रही थी। एक बच्चे ने तीनों फील्ड के लिए दिया था, ग्रेविटेशनल फील्ड दिस वन, मैग्नेटिक फील्ड दिस वन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस वन। आई हैव गिवन द फुल मार्क। लेकिन हमारे स्कूल के मेरे एक स्टूडेंट थी जिसको 98 मिला, 2 मार्क्स माइनस यही हुआ, क्योंकि उसने मेटल लिख दिया था जबकि ग्लास आंसर लिखना था। दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। यू शुड स्पेसिफाई द फील्ड। फिजिक्स बहुत ही पर्टिकुलर हो जाता है, डेप्थ नॉलेज आ जाता है, ठीक है। फॉर दिस क्वेश्चन अगेन आई एम टेलिंग, आपको 3 चीज एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आपका शार्प टर्न ले रहे हैं, नो डाउट। शार्प टर्न में थीटा एंगल, आपका थीटा एंगल उसने क्या किया, थीटा को ज्यादा ले लिया होगा, वेलोसिटी को कम कर दिया होगा, इसीलिए नी उसका बार बार यहाँ टच कर रहा है। नी टच करने के टाइम फ्रिक्शन फोर्स है, वो घिस रहा है, लेकिन चोट यहाँ नहीं पहुंच रहा है बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, F delta t. F is inversely proportional to delta t. Is the answer fully understood? Tell me. Yes, yes. क्वेश्चन में आपको 3 चैप्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। एक ही साइंटिफिक रीजनिंग क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होता है
साइंटिफिक रीजनिंग क्वेश्चन सबसे डिफिकल्ट होते हैं, इसीलिए तो हम एमसीक्यू को डरते थे और आपका पूरा एग्जाम पैटर्न एमसीक्यू हो गया। अभी तक सीबीएसई फर्स्ट बैच के लिए जो सैंपल पेपर दिया है बहुत ही इजी दिया हुआ है, डायरेक्ट आंसर। क्यों डिफिकल्ट होता है जेईई मेंस में, नीट में, आईआईटी? क्योंकि दे आस्क क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सेवरल थ्योरीज। आप कोई एक ही थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख देते हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes. Okay. So building cyclist, banking tracks or level roads. All three we have done. Now you can do some numericals. Or this chapter laws of motion is over. Laws of motion is over. You just do some numericals based on this. Yes. Numericals में suppose you are having a balloon. You are having a balloon that is having a weight mg and it is going downward. इसमें से मैंने कितने मास माइनस करूंगी कि it will go up with the same acceleration. It is going downward with an acceleration a. कितने मास m मैंने यहाँ से निकाल दूंगी, इसके अंदर कुछ फिलिंग है, इसके अंदर से कितने में वो सैंड जो फिलिंग है उसको निकाल दूंगी, such that it will go with the same acceleration in the upward direction. Yes. Try this. What can be your answer? Take it with respect to free body diagram. N minus mg. इतने जल्दी नहीं होगा, थोड़ा सा टाइम लो, इसको प्रॉपर इक्वेशंस बनाओ, उसके बाद सॉल्व करके बताओ। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम टेलिंग? हम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो, समझ नहीं आया। क्वेश्चन में दिया हुआ है balloon can move downward with an acceleration a having mass capital M. Understood? ठीक है? Okay. Are you understanding? How much mass small m I should remove from it such that it will move with the same acceleration in the upward direction? है क्या समझ में? Same acceleration in the upward direction. What are the free body equations? Free body equations बनाओ दोनों का. Yes. What are the equations? Tell me. No, नहीं अपन. Balloon of mass capital M, ये capital M, यहाँ minus M. Free body diagram you can make it. Suppose पहला वाले के लिए free body diagram क्या होगा? ये balloon है, इसके mass capital mg downward है, इसका reaction force you can take, reaction is R, it is moving an acceleration A. What is the equation? Is anyone who can tell me? If it is moving downward, mg minus r is equals to ma. mg minus r is equivalent to capital Ma. Now in the second situation, so what I have given? I have given कि इसके मास में m minus m हो गया, ये इसकी मास हो गया m minus m, तो इतने नीचे f कितने r कितना है और it is moving acceleration a in this direction. What is the equation? बड़ा कौन सा हो गया? R equals to तो इक्वेशन m क्या into g plus m. r minus m into g is equivalent to m minus m total mass into acceleration. क्वेश्चन है what is small m पूछा हुआ है. Solve this equation, tell me what is small m. Solve this equation and tell me what is small m. Aishwarya, are you able to solve it? Ma'am, 2ma upon g plus a. Yes, the correct answer is 2 times capital M into A divided by G plus A. इतने मास आप इसमें से निकाल दोगे. This is the value of small m. ये दोनों इक्वेशन सॉल्यूशंस आता है या नहीं?
10th क्लास में इतने इक्वेशन सॉल्यूशन सिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा स्पीड अप करो, काम में लगाओ जो पढ़े हो पहले। yes or no? आरव ग्रेवाल, आर यू गेटिंग? आरव इक्वेशन सॉल्यूशन आता है? हम कर रहा हूँ। कनक हो गया? डूइंग मैम। कनक इतने टाइम नहीं लगना चाहिए, थोड़ा सा मैथ स्पीड अप करो। मैम आर मैम एयर रेसिस्टेंस के कारण लग रहा है। आर तो mg वेक्टर का अपोजिट रिएक्शन फोर्स है। गौतम, आर यू डूइंग इट? गौतम नहीं है कोई? गौतम तो है। यस मैम। There are two गौतम्स here। मैम मतलब एयर रेसिस्टेंस की वजह से ही ऊपर रिएक्शन फोर्स लग रहा है ना mg का। कहीं भी कोई भी फोर्स कभी सिंगल एक्ट नहीं करता ना। न्यूटन सार लॉ क्या बोलता है? आइसोलेटेड फोर्स एग्जिस्टेंस इज इम्पॉसिबल। फोर्स हमेशा पेयर्स में आते हैं। आप mg वेक्टर नीचे डाउन दे नहीं सकते जब तक आप रिएक्शन वेक्टर नहीं दोगे। तो दिस इज योर रिएक्शन वेक्टर। ओके मैम। एयर रेजिस्टेंस होता तो मुझे बेवंस फोर्स देना पड़ता है यहाँ। Yes, are you getting the answer? 2ma by g plus a? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Second question in the same pattern. Quickly answer though, then I will take the attendance because you are having many classes. How is your computer class? Is the syllabus continuing? Yes, anyone? Himanshu, you can tell me something about Himanshu, sir. Himanshu, is your syllabus continuing? Himanshu? Yes, No ma'am. one? Are you able to understand? Yes, ma'am. See this question. A balloon of mass mg is rising up. इस केस में बैलून क्या है? ऊपर जा रहा है विथ एन एक्सीलरेशन a। ठीक है? सो दैट द फ्रैक्शन कितने वेट में इससे निकाल दूंगी, इसका एक्सीलरेशन डबल हो जाएगा। ये अपवर्ड तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन वी विल मूव विथ एन एक्सीलरेशन 2a इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने इसमें से कितने माइनस कर लूंगी? इसमें m माइनस m जो है, ये स्मॉल m की वैल्यू कितना होगा कि ये ऊपर चला जाएगा विथ डबल एक्सीलरेशन, हल्का हो जाएगा। Yes, anyone? Simultaneously given the attendance also. Yes. Akanksha Sharma, are you present? Akanksha Sharma. पिछले क्वेश्चन जैसा ही है मैम ma अपॉन g प्लस 2a हो जाएगा। सही आंसर है, गुड। ma upon g plus 2a is small m. The correct answer given by Himanshu. Himanshu, are you giving or Siddharth? Who has given this answer? मम्मी मानश। Okay. Arab Grewal, are you present? Arab, are you present? Arab Grewal. Arab Grewal, भाग गए। Arab Sharma. No answer. Okay. Agnish. Agnish, you are not answer. Agnish is not present. Arab Sharma present. Aishwarya. Akshita. Akshita. No. Aman.